السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بلوچستان کی سرحد کے اندر ایران کی جانب سے گزشتہ رات کیے جانے والے 2 ٹارگیٹڈ حملوں اور اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ان حملوں میں 2 بچے ہلاک اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی یہ بلا اشتعال خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بیان میں اس بات کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے کہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے کئی چینلز موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایران سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور طے کیا ہے کہ ایران کے سفیر کو، جو اس وقت تہران میں ہیں، اسلام آباد واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان فی الحال فوری طور پر ایران کے ساتھ اپنے تمام اعلیٰ سطحی رابطے اور ملاقاتیں منسوخ کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیووس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے اس ملاقات کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے ملاقات کی تصویر اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کے ساتھ شائع کی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر بات کی اور کہا کہ دونوں مسلمان ملک دہشت گردی جیسے مشترک چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات گہرے اور تاریخی ہیں اور ایران پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 2.5 ارب سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر تک لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس ماہ کے شروع میں ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر پاکستان کی جانب سے کیے گئے اظہار ہمدردی کے لیے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کی حدود کے اندر ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ حملہ پاکستان ایران سرحدی علاقے پنجگور سے 70 کلومیٹر دور سبز کوہ کے علاقے میں کیا گیا، جو ایران کی سرحد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مقامی ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے کہ حملہ ڈرون سے کیا گیا یا میزائل سے، تاہم مقامی لیویز انچارج نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا ہے کہ منگل کی رات انہیں اطلاع ملی کہ پنجگور کے سرحدی علاقے سبز کوہ میں ایک مکان پر مبینہ طور پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ لیویز اہلکار عبدالحمید کے مطابق حملے کا نشانہ سبز کوہ کے ایک مقامی گاؤں میں ادریس بلوچ نامی شخص کا مکان تھا، جس سے 2 بچے موت کا شکار ہو گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس گاؤں میں صرف 5 سے 6 مکان ہیں اور یہاں کے رہائشی بکریاں چرا کر اپنا روزگار کماتے ہیں۔ پنجگور کے ایک مقامی صحافی عبدالواحد بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ پاک ایران سرحد کے قریب پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالعدم تنظیم جند اللہ کے ٹھکانے پر حملہ ہوا ہے، تاہم سبز کوہ میں عینی شاہدین نے بتایا کہ حملے میں عام لوگوں کے مکانات اور ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی ہونے والے 5 بچوں کو پنجگور کے ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
ईरान की जानिब से दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है, जबकि चीन ने पाकिस्तान और ईरान पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने बुध को न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि हम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने, कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करने और अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान और पाकिस्तान दोनों को करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामी ममालिक समझते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए गजा में जारी तनाज़े को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और कहा कि गजा में इंसानों की तकलीफ देखकर उनका दिल टूट जाता है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए एक फ़लस्तीनी रियासत की ज़रूरत है जो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हो और इसराइल के साथ मौसर तरीके से काम कर सके। ब्लिंकन ने ईरान जौहरी मुआहदा खत्म करने को एक बड़ी गलती करार दिया। उनका कहना था कि जब तक ईरान के साथ मुआहदा था तब तक उसका एटमी प्रोग्राम एक बॉक्स में था, लेकिन मुआहदा खत्म होने के बाद सूरत हाल वहां है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका हौसी बागियों के ठिकानों पर हमलों के बावजूद मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तनाज़ा न बढ़े और कशीदगी कम करने के लिए हालात साजगार हों। एएफपी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता बागियों के साथ तनाज़े का इन्हिसार उन पर है जिनकी राय ईरान और मशरक़ वस्ता के मुल्कों के दारुल हुकूमत पर असरअंदाज हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीका के नज़दीक एक रास्ता यह है कि गजा की लड़ाई को किसी बड़े तनाज़े में तब्दील होने से रोका जाए। इससे कबल उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उम्मीद जाहिर की कि कतर के जरिए होने वाली बातचीत इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में जंग बंदी के बदले यरगमालियों की रिहाई के लिए एक नए मुआहदे का बायस बन सकती है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वो जंग बंदी के मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसका नतीजा निकलेगा। कतर और फ्रांस की मदद से इसराइल और हमास के साथ गुज़श्ता रोज होने वाले मुआहदे के बाद बुध को इमदादी सामान के ट्रक रफा बॉर्डर से फलस्तीनी इलाके में दाखिल हुए हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले मुआहदे में तय पाया था कि गजा में हमास की हिरासत में मौजूद इसराइली यरगमालियों को दरकार फौरी अद्वियात पहुंचाई जाएं और बदले में इंतहाई कमजोर और जरूरतमंद फलस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। दोनों मुल्कों ने उम्मीद जाहिर की थी कि इमदाद बुध को कतर से मिस्र के लिए रवाना होगी, जहां से उसे रफा की सरहदी गुजरगाह के जरिए गजा ले जाया जाएगा। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने बुध की सुबह अपने जेर कंट्रोल मगरबी किनारे में किए जाने वाले फजाई हमले में एक आला फलस्तीनी अस्करियत पसंद को मार डाला है। इसराइली फौज ने कहा कि अहमद अब्दुल्ला अबू शलाल गुज़श्ता एक साल के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार था। फौज ने एक वीडियो लिंक के साथ एक गाड़ी पर हमला करते हुए दिखाया है कि अहमद अब्दुल्ला को इस फजाई हमले में निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब फलस्तीनी इलाल अमर ने बुध के रोज मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इसराइली हमले में 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के लिए अमरीका की मजबूत और पायदार हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि यूक्रेन के लिए अमरीका की फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। यूक्रेन के सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में मजीद इमदाद हासिल करने के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उधर यूक्रेन की फौज ने कहा है कि उसने रूस की तरफ से गुज़श्ता रात के हमलों में फायर किए गए 20 ड्रोन में से 19 को तबाह कर दिया, लेकिन ओडिशा की जनूबी बंदरगाह पर
मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने कहा कि मलबा रिहायशी इमारतों पर गिरने से एक गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। ओडिशा में होने वाला ड्रोन हमला मंगल को मिसाइल हमलों के बाद हुआ है, जिसमें शिमाल मशरकी शहर खार्किव में कम से कम 17 अफराद जख्मी हो गए थे। इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्द अक्सरियत वाले इलाके अरबिल में ईरान की पासदाराने इनकलाब के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इराक ने ईरान से बतौर एहतजाज अपना सफीर वापस बुला लिया है। ईरान ने गुज़श्ता रोज कहा था कि उसने शिमाली इराक में अपने मिसाइल हमले से इसराइल का एक जासूसी का अड्डा और शाम में दाइश के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किरानी ने कहा कि तेहरान दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन ईरान को यह हक हासिल है कि वह अपनी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के इंसदाद के लिए इक़दाम करे। अमरीकी बहरिया ने गुज़श्ता हफ्ते यमन के हौसी बागियों के लिए सामान ले जाने वाले एक बहरी जहाज पर छापे के दौरान ईरान में बने हुए मिसाइल के पुर्जे, अज्जा और दूसरे हथियार जब्त कर लिए हैं। अमरीकी बहरिया के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उसके 2 कमांडोज लापता हो गए। ये मालूमात मंगल के रोज जारी होने वाले अमरीकी फौज के एक बयान में कही गई है। चीन की आबादी में सन 2023 में मुसलसल दूसरे साल कमी वाक़ई हुई है। कोविड-19 के दौरान शरह अमवात बढ़ने के बाद जब सख्त लॉकडाउन खत्म हुआ तो शरह पैदाइश तेजी से कम हुई, जिसके असरात चीन की मईशत और शरह नमू पर तवील मुद्दत तक रहने की तवक्को है। 1980 से सन 2015 तक नाफिज की गई एक बच्चा पॉलिसी और इस अरसे के दौरान आबादी की तेजी से शहरों की तरफ मुंतकली के नतीजे में चीन में कई दहाइयों से बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ई हो रही है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।